and very good afternoon. Today we are going to learn a new topic, that is 1.5 a kabaddi match. For this you have to open page number 15 from your English textbook. So we will left some pages of this lesson and we will direct collect the information from the page number 50. Okay, student, you know very well these things. Kabaddi is a game and it is a very pure game of from our country. It is a very ancient game and it originated in our India. Now it has become a popular all over the world. Many countries learn this, played this on the international events also organized. In these events, international rules are followed, but several other kabaddi styles such as Sanjeevani, Gemini, Amar are followed in the different parts of India. And it had a nickname also in our country, Huttuttu. I hope this name you must be heard from the anywhere. Okay, now we will start our information. In kabaddi, two teams of 7 members each face each other in a flat rectangular court. In this game there is a need of 7 players and there is a need of 2 teams, and it is played on the flat rectangular court, and it had a 2 part like this, one and second one. Each are equal, divided by a midline. It is divided by midline. The game is usually played in 2 halves with a time break in between. After the break, the team exchange their side in court. To play the game, each team sends raider across the midline to the other team. The raider tries to tag the opponent and run back to his side, all in one breath. To show that he hasn't inhaled again, he has to chant kabaddi kabaddi all the time. If he has to inhale again, he is out. The opponents try to catch the raiders and stop him going back to his half till the loses his breath and has to inhale again. If the raiders manage to go back successfully, all the person he has tagged and all those who have touched him are declared out. For each player declared out, the opposite team scores a point. If all the 7 players in a team are out, the opposite team gets bonus point. Alone, the team with a maximum points win the match. This is a very basic information, and now we will learn more than it. Now I will give it the explanation in Hindi. तो स्टूडेंट, आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि जो कबड्डी है, कबड्डी एक इंडियन गेम है और ये प्योर इंडियन गेम है, लेकिन अभी ये गेम इतना फेमस हो गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये खेला जाने लगा है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि हम बोलेंगे श्रीलंका, ईरान, इराक, मलेशिया, चाइना, इस तरह की टीमें भी, इस तरह की कंट्री भी आज हमारे इंडिया कंट्री से ओरिजिनेट होकर एक गेम गया है कबड्डी, जिसका दूसरा नाम हुतुतु भी है। तो ये दूसरे कंट्री भी है आज खेलने लगे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम दुनिया के अंदर टॉप टीमें देखें कबड्डी इस गेम की, तो इंडिया, ईरान, मलेशिया, तो इस तरह के नाम सामने आते हैं। तो हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखनी है कि इसमें कितने प्लेयर होते हैं, कितनी टीमें होती है। तो सबसे पहले तो 2 टीमों के बीच में ये गेम खेला जाता है और हर टीम के अंदर 7 मेंबर होते हैं और हर प्लेयर का जो है कैरेक्टर, मतलब रोल जो है अलग अलग होता है। जैसा कि कोई रेडर होता है, कोई डिफेंडर होता है और कोई ऑलराउंडर होता है। ठीक है, अब रेडर किसको बोलते हैं? रेडर मतलब ऐसा प्लेयर जो मिड लाइन के अक्रॉस जाकर जो अपोनेंट टीम को टच करके आता है, टैग करके आता है, और अगर वो मिड लाइन के अपने ग्राउंड में वापस आने में अगर कामयाब हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसको 1 पॉइंट मिलता है, या फिर जितने लोगों को टच किया उतने पॉइंट मिलते हैं। तो और सबसे पहली बात कि इसकी जो ग्राउंड है
तो ग्राउंड का जो साइज है वो मुस्ततिल नुमा रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जिसको मुस्ततिल नुमा बोलते हैं, और दोनों ही जो पार्ट होते हैं उनके बीच के अंदर मिडल लाइन होती है, और मिडल लाइन के दोनों साइड में जो ग्राउंड होता है वो इक्वल होता है। अब सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे एक लाइन होती है जिसको हम वॉक लाइन बोलते हैं। तो जो रेडर होता है, रेडर को इस वॉक लाइन को क्रॉस करना जरूरी होता है। अगर वो क्रॉस नहीं करता है तो इसका मतलब इसको आउट डिक्लेयर वो हो सकता है, इसलिए इस वॉक लाइन को क्रॉस करना जरूरी है। ये है बोनस लाइन। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेयर खड़े हुए होते हैं लगभग यहीं पे, और रेडर यहाँ पे आता है, और अगर फॉर एग्जांपल रेडर बोनस लाइन को अपने टो से या फिर इसके अंदर घुस जाता है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि उसका एक पैर बोनस लाइन पे होना चाहिए और दूसरा हवा में, तभी उसको एक पॉइंट बोनस पॉइंट का मिलेगा। तो इसको बोलते हैं बोनस लाइन। और ये है एंड लाइन। ये मतलब जो यहाँ पे टीम होती है उस टीम को यहाँ तक के लिमिटेड यहाँ पे रुकना पड़ता है। अगर ये इसके पीछे चला जाए तो उसको आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इधर भी ये लॉबी है, लॉबी में आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप जो आपका अपोनेंट है उसको टच करते हो तभी आप लॉबी के उस पार जा सकते हो, वरना आप अगर उधर गए विदाउट टच किए तो आपको आउट दे दिया जाएगा। तो इस आपको ये पता चल गया कि रेडर इस गेम को खेलने के लिए रेडर क्या करता है, मिड लाइन को क्रॉस करके दूसरे अपोनेंट के साइड में जाता है और टैग करने की, टच करने की कोशिश करता है। लेकिन उसको जब वो खेलता है कबड्डी, आपको कबड्डी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको पता ही होंगी ये बात कि जब वो कबड्डी खेलता है, जब वो मिड लाइन के क्रॉस जाता है तो उसको कबड्डी चैंट करना पड़ता है, और वो भी बिना ब्रेक किए हुए, उसको बिना सांस रोके उसको कबड्डी बोलते रहना ज़रूरी है। अगर वो नहीं बोलता है तो इसका मतलब उसको रिटर्न कर दिया जाएगा या फिर उसको आउट दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ इसके लिए ज़रूरी है। और जो डिफेंडर होते हैं तो डिफेंस ये कोशिश करता है कि वो जो रेडर है, रेडर को पकड़ने की कोशिश करे। अगर वो रेडर को पकड़ने में कामयाब हो जाती है तो उनको एक पॉइंट मिलता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपके पास 7 प्लेयर है यहाँ पे टीम में, 7 प्लेयर में से 4 प्लेयर अगर आउट हो जाते हैं और यहाँ पे बचते हैं सिर्फ 3 प्लेयर, और 3 प्लेयर को रेडर मारने के लिए रेडर अगर आता है और उस रेडर को अगर ये 3 प्लेयर पकड़ लेते हैं तो तब इस टीम को एक पॉइंट बोनस मिलेगा, मतलब इनको 2 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। और फॉर एग्जांपल ये टीम इस टीम को या ये टीम इस टीम को पूरी तरह से ऑल आउट कर देती है, मतलब 7 के 7 प्लेयर अगर ऑल आउट कर देती है तो उनको 3 पॉइंट बोनस में मिलते हैं। तो इस तरह इस गेम के नियम हैं, और आजकल इस गेम को हमारे इंडिया में काफ़ी ग्रोथ मिल रहा है। इसकी प्रो कबड्डी की मैचेस होने लगी हैं। अलग अलग जो सिटी है इसको रिप्रेजेंट करता है, जैसा पुणे है, मुंबई है, आपने सुना होगा हरियाणा, पटना पायरेट्स, इस तरह की टीमें हैं। तो और इस गेम की जो है ग्रोथ हमारे इंडिया के अंदर होनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्योर इंडियन यानी यहीं से निकला हुआ गेम है। तो उम्मीद है आपको ये समझा होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, और आपको इस गेम में इंटरेस्ट भी होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको इस इंफॉर्मेशन में अगर कभी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।